But stand up mein kya hai? You're literally the only person on stage. Literally, it's called stand up. You know what I mean? And हाँ, all eyes are on you. और उस शॉट में हंसी आती है क्योंकि ऐसा लगता है ये सच में गंवा रहे हैं। क्योंकि आई वाज फीलिंग लाइक दैट ओनली। मैं No, इस no. आदमी मैं क्या बोलूं, उसने मुझसे बात कर ली। जब आप पढ़ रहे होते हैं, हर इंडस्ट्री के कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत पुश करते हैं। इस इंडस्ट्री में भी थे काफी लोग मेरी वाह कर रहे थे, मुझे पुश कर रहे थे, मुझे एनकरेज कर रहे थे, और कुछ लोग हर जगह हर इंडस्ट्री में चलते हैं। वो होता है भाई, हाँ। एंड इट्स अ गुड थिंग। वो जलेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दैट यू आर डूइंग वेल। दिस शो स्टार्टेड मेरा बड़ा भाई, आई लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन। दिस शो इज एंडिंग ऑन, आप रोड पे जाओ लोग मानेंगे आपको। वाह वाह, भाई I love you ना, तो क्या या करें? इसलिए इसलिए मरवा रहा मेरे को तू। Hi, I'm Bhushan Tripathi. Hi, I'm Nushada Balsara. Hey, I'm Nemo Chakraborty. And this is the Three Amigos podcast. Hello, everyone. Welcome back to the Three Desi Amigos podcast. Before I begin, I need to apologize that today, for unforeseen reasons, it's not the Tres Amigos, it's the Uno Amigo, which is me. So I really miss my co hosts and my brothers in arms, Bhushan and Nushazar. Of course, the episode won't be complete without them, but as they say, the show must go on. So, yes, so I am super excited today. See, the thing is, before I introduce my special guest to all of you, I want to say that I've been a very, private person my entire life. Okay. And I've been very selective about the people who I call family. Like, I'm like, as I mentioned in the podcast before, I'm like the Vin Diesel of the Fast and Furious, that family. I'm that kind of a guy. So for me, family is very important. And if I consider somebody a brother, I really mean that. I won't just say, "Arey yaar, tu mera bhai hai." I'll actually know that emotion goes behind that. Ki, yes, ye mera bhai hai. And coming back to me being private, so I've been very selective about the people who are, who I look up to and who I'm a fan of. So today's guest is no different. He is my big brother. See, I've been the eldest in the house with my siblings, but I look up to this man as my big brother, and he's doing so well for himself. We have seen each other's graph of work over the past years, and today he's just like, I'm so happy for him. Like, बोलते हैं ना कि यार छोटे भाई बड़ा भाई को देख के बोलता है अरे यार, this is my hero. So yes, so without further ado, let me introduce to you the Babbar Share, my buddy, my best friend, and my big brother, Arya Babbar. Hello, Arya. Welcome to the show, bhai. Hey, hi, Mimo. Thank you so much. And what an intro यार। तू इतना इतना प्यारा इंट्रो देने लगा, मैं एक्चुअली अपने पीछे देख रहा था किसी और के बारे में बोल रहे हैं। See, this is why you're so humble. इतना सब अचीव होने के बाद भी आप इतने humble हो. This is the reason I look up to you. Because मैं तो अपने नामकरण में भी आर्या हम्बल बब्बर डालना चाह रहा हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आप मैं हो सच भाई, में मैं बहुत ज्यादा हम्बल हूँ। मैं सच में बता रहा हूँ, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। वही वैसा ही होना चाहिए भाई, वैसा ही होना चाहिए. बिकॉज क्या होता है भाई, सी, when people achieve मीमो, things, आई लव यू यार। नाउ नाउ प्लीज, नाउ स्टॉप नहीं इट। नहीं 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 नहीं, ये आई देखो लव यू। आप नहीं नहीं, बट सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो फैक्ट है भाई, ये देखो, मुझे आपकी तारीफ करके मुझे क्या मिलेगा, आप बोलो. द पॉइंट इज, अब देखो, मेरी व्हेन तारीफ करके तुझे कुछ मिलेगा तो नहीं। it's zero compensation for that thing. But I do want to say that when people do achieve success, when people do achieve a position in life, क्या होता है, the struggles ना, जो struggles होते हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं they make it sour. They make us very bitter, and they make us, different people than who we are not. And then when we achieve success na, we want to give that same sourness to the others after us. कि यार नहीं यार, I went through this process, so you have to go through this process. But there are very few people in life who remain humble, who remain to the ground, and you're one of them. So that is why I look up to you. So ओके, that थैंक I'm so honored. Thank you, नो man. नो, Thank थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू, you. एंड वेरी ऑनेस्टली आई थिंक you're someone who I really really value as a friend, value as a brother. प्लीज मेरा यकीन कर इस बात। Of course, bhai. एंड मैं बहुत खुश होता हूँ
आई थिंक लड़कियों के बाद अगर कभी किसी का मैसेज अगर मुझे आता है तो वो तेरा है, जिसको देखकर मैं खुश होता हूँ. बाप रे, आई जस्ट होप नाउ माय वाइफ इज नॉट वाचिंग दिस, we will. बट You want me to edit it? I'll edit that part. डोंट edit anything. नहीं नहीं, बट इतना बड़ा दर्जा, माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू. बहुत I'm बड़ा so दर्जा है, तो इतना बड़ा दर्जा हम तुम्हें देंगे अपना दर्जी. thank you, bhai, So thank you. bad that was. हाँ. It's okay, you know. We हाँ we सरकार. will touch base upon stand up also later in the show. But yeah, no, but by give everybody an introduction as to what you are doing now. Everybody knows who you are, but what you are doing now, give the viewers like a quick insight into it. I think, yeah, पहले तो hi everyone, how's everyone doing? Thank you so much for coming over here and being a part of the podcast and by my bhai. And आज 3 amigos नहीं, आज 12 amigo हैं, क्योंकि ये 6 है, हम 6 हैं. एंड मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं जिंदगी में अब क्या कर रहा हूँ, मैं जिंदगी में बहुत खुश रह रहा हूँ. वो मेरी सबसे बेहतरीन चीज है जो मैं कर रहा हूँ. That's what. क्योंकि हाँ यार, क्योंकि मैंने एक चीज समझी है कि यू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट लाइफ इज टू लिव लाइफ. हम पैसे कमाने में और करियर संभालने में और फैमिली संभालने में और ये सारी चीजों में इतने ज्यादा लग जाते हैं कि हम लोग जिंदगी जीना भूल जाते हैं. और मैं एक मोमेंट पर जाकर मैंने जिंदगी में समझा कि बहुत जरूरी है खुश रहना, क्योंकि अगर आप अपने साथ खुश हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे वो आपके साथ खुश रहेंगे, Very आपकी true. रिलेशनशिप्स खुश रहेंगे, आपका पैसा आपके साथ खुश रहे. सही बोला, सही बोला. That's a very important thing because क्या होता है भाई, जैसे अभी आपने कहा, you know, we're not going philosophical today, but what you said is a very beautiful thing कि यार कहीं ना कहीं it's the most important thing is to be happy now. Whether I'm seeing you having Starbucks coffee, भाई बड़े शुक्रिया. लोग भाई सुबह सुबह कॉफी. शुक्रिया. क्या नाम क्या लिखा Correct. था उसमें? आर्य बब्बल लिखा है नाम उसमें? क्या लिखा है कॉफी के कप में? नहीं, मेरी क्या मेरी बीवी ने अपना नाम लिखकर भिजवाई ये कॉफी. भाई क्लैपिंग, क्लैपिंग भाई, मतलब टू गुड. मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मुझे बाकायदा विद ब्लाइंड फोल्ड जिंदगी में बैठना पड़ता है और मैं ब्लाइंड फोल्ड्स के साथ चलता हूँ. But I want to still answer the question that you had asked. I went philosophical. I just realized. यार मैं जिंदगी में क्या क्या कर रहा हूँ. मैं besides being happy and everything, what I'm doing in life is I am busy with Punjabi cinema. That's That is what keeps me very busy. That is the reason I'm wearing chashma right now, because I'm a Punjabi film actor. And we have to prove somewhere. और उसके अलावा जो है मैं जी टीवी का एक शो कर रहा हूँ, जागृति. मैं उसमें मेन एंटागनिस्ट प्ले कर रहा हूँ. बहुत क्रूअल इंसान है. उसके अलावा जो एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा खुशी दिलाती है, वो है लोगों को हंसाना. वो मेरा इनहेरिट पर्सनालिटी जो है, दैट इज स्टैंड अप. सो आई एम डूइंग स्टैंड अप आल्सो. एंड देयर इज अ शो जो मैंने किया है जो काफी चला है. इट्स कॉल्ड सीजनल एक्टर, क्योंकि नेपोटिज्म हर किसी का काम नहीं आता. एंड दैट्स व्हाट द शो इज. नॉट दैट उसमें ज्यादा कुछ झूठ है. हाँ, सही है, सही है. है ना? क्या भाई, हम दोनों ही आज सोचो, अभी हाँ दुनिया यार. वही सोचेगी कि देखो ओ नेपोटिज्म. तेरी, आज के इमेजिन शो का नाम होना चाहिए जब एक नेपो ने दूसरे नेपो का हाथ पकड़ा. नेपोटिज्म विद आर्य बब्बर. दैट इज द टाइटल ऑफ द शो. द टाइटल शुड बी नेपोटिज्म के करण अर्जुन. सुपर्ब, सुपर्ब. आई एम कीपिंग दैट. मतलब माय गॉड, सोचो आज ही भूषण और नुशाजर को नहीं होना था. अभी दुनिया सोचेगी. मैं बता रहा हूँ ये हिडन डिस्गाइज, मतलब ब्लेसिंग है ये. होता एंड है, हाँ, होता मैं है. यार एक नई चीज है जिसके बारे में अभी तक मैंने कहीं बात नहीं की है. प्लीज मैं प्लीज इधर बताइए. हाँ, वो ये है, मैंने एक नया शो लिखना शुरू किया है. ओके. ये मेरे स्टैंड अप कॉमेडी का एक अलग पहलू होगा, क्योंकि ये स्टैंड अप कॉमेडी विद स्टोरी टेलिंग होगी. Okay. जैसे बस्सी जी करते हैं, जैसे जाकिर साहब करते हैं, उस लहजे और उस स्टाइल में जाते हुए कि मैं सिर्फ चुटकुले या जोक्स नहीं बता रहा हूँ. मैं एक बहुत लंबा एक किस्सा बता रहा हूँ जिसके अंदर तेरा जोक्स एंड मैडनेस, but it's Wow. actually one particular storytelling which I am planning to open after a few months. That's what. होगा Yeah, भाई, so होगा. right now I'm just starting to write it. Wonderful, wonderful. You know, जैसे अभी आपने कहा, you know, you are doing Punjabi cinema, you are doing a TV show, you are doing stand up, you're doing another stand up. That's what I just fills my heart with joy, boy. Because you know why? See, जैसे आपको मैंने कहा, you know, we have seen each other's graph over the previous years, and we have always been there for each other. You know, we have just been a phone call away. In fact, ladies and gentlemen, I want to tell you that when I called Bhai for this, you know, he instantly said yes. He said, "मेरी जान, जब भी तुझे चाहिए I'm there." So this shows
the bond that we have, and it's been over the years, it's just been growing and growing and growing. That is there. And speaking of stand up, bhai, I again, this is not like an educational course about stand up or what are the tips and things. But then tell me one thing: you're an actor, correct? And you're such a great actor. I You're think doing. so. Yeah. We know. We have seen your work. Your work is out there. Touch for you. You're a very good actor. So I tell me believe so. something. No, of course. You are. So coming like doing cinema, then हाँ जी. doing TV, doing movies and TV. हाँ. What made you go into stand up? वो बताओ आप. यार Because that is very intriguing. दैट इज एक्चुअली क्वाइट ट्रू. मेरा जितना जितना मुझे कोई जानता है, जैसे आप मुझे जानते हैं या लोग मुझे जितना जानते हैं, मैं वो जानते हैं कि मेरा खुद का अंदाज जो है जिंदगी का वो हंसी मजाक का है. माई डिफेंस मैकेनिज्म इज ह्यूमर. यू नो, True. आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म पर्सनालिटी बन जाती है. तो मेरा बिकेम ह्यूमर, जैसे चैंडलर का ह्यूमर था. So I think Exactly. I relate to that sarcasm. I relate to that humor a lot. 2020 में जब कोविड हिट हुआ, and I had just got a new house in Juhu, and I was doing up the house. So a lot of my work went into the house. So I realized that right now I can't be finicky about work. I need to do work, and I need to earn money so that I can create my savings again, and then मैं अपना कुछ ना कुछ करके ना अपना घर भी खूबसूरत तरीके से बना लूं. तो उस समय आई डिड नॉट केयर, और मैंने जो मेरे सामने आया मैंने बस साइन किया. मैंने सोच आओ कुछ नहीं, मैंने कहा आन दो, मैंने वो किया. ऑलमोस्ट 2 साल मैंने इतना काम किया घर खत्म करने के लिए और सारी चीजों के लिए यार, क्योंकि वो एक बहुत कड़वा सच है, और वो ये है कि बम्बई का जो रियल एस्टेट है ना यार, वो अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता. True. वो सही है. वो आपको आपकी औकात बता देता है. सही है. एंड करते करते मैंने उस समय समझा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे पैसा बहुत दे रहा है, पैसों का मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत मिल रहा था, लेकिन मुझे उसने क्रिएटिवली बहुत डिससेटिस्फैक्शन दिलाना शुरू किया. उसी समय मेरी वाइफ जो थी वो पोइट्री बहुत करती हैं और शायरा हैं वो, और वो पोइट्री शोज पे बहुत जानी थी, जाके परफॉर्म कर रही थी. तो मैं उनकी बहुत टांग खींचता था, क्योंकि पूरा दिन उनकी मैं शायरी सुनता रहता था. Okay. हाँ. बहुत पकता था. मैंने बोला क्या तुम सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, दिल के अरमा, चलो वो तो सलमा आंटी हैं. हाँ, है ना. तो ऐसी ऐसी शायरी सुबह सुबह, ये दिल मगर यूं चाहे चाहे अगर दिल, ऐसे ऐसे लाफानी समथिंग. मैं बोलता था क्या सुबह सुबह बातें करती है, पागल हुई मेरी बीवी, पहले क्यों नहीं बताया था उसने ऐसी है टाइप्स है. तो मैं एकदम बहुत टांग खींची उसकी, बहुत खींची मैंने. तो मुझे बोलती है अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम जाकर करो, फिर ओपन माइक कॉमेडी करो ना तुम, इतना दम है तुम में तो. अरे मैंने कहा बाप रे, चैलेंज करती है तू, चैलेंज. चैलेंज करती है. बोलते हाँ करती हूँ. मैंने कहा ठीक है चल. मैं भी पूरे मूड में ऐसे कूद गया अंदर. तो मैं क्या, एक ओपन माइक हो रहा था हुटेड का. सो आई जस्ट वेंट फॉर दैट यार. एंड वहां पर मैंने कुछ 10-15 मिनट ऐसी कुछ बकचोदियां की, काफी चीजें बोली, और मैंने एक शायरी कर दी वहां, कॉमेडी वाली शायरी, Okay. जो जिसकी मैंने रील बना दी, और वो रील वायरल हो गई. अरे और वाह. उस दिन मुझे तालियों का ग्रेटिफिकेशन मिल गया. Touch wood. एंड कोई भी क्रिएटिव इंसान हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, और जो भी देख भी रहे होंगे अभी, वो अग्री करेंगे इस बात से कि हम क्रिएटिव लोग पैसों से ज्यादा तालियों के भूखे होते हैं. Appreciation, हाँ, validation. हमें इतने लोग वैलिडेशन दे देकर, सर आप तो ये है, आप तो ये है, बजट नहीं, कोई बात नहीं, तो रोते हैं. आप ही हो सर. हाँ. आपके बिना नहीं हो पाएगा सर. हाँ. आप ही है. You are the answer to my prayers. सर अवार्ड मिलेगा, अवार्ड जब कोई बोलता है ना सर अवार्ड मिलेगा, मेरे वहां में चेक नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा इसमें. That is synonymous with no money. या नो मनी, आई एम लाइक अच्छा ठीक है. तो Right. by the end of it यार, then I just started going for it, and then I started enjoying it. I started really enjoying it यार, That's and right. yeah, and करते 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 फिर I got signed on, एक कंपनी ने मुझे साइन कर लिया. अरे फिर वाह. शो, हाँ यार, फिर शो बन गया. एंड ये शो एक्चुअली जो है, जो सीजनल एक्टर शो है, 1 घंटे का है.
क्राउड वर्क के साथ 1 घंटा 15-20 मिनट हो जाता है। एंड उसमें जो है वही जोक्स हैं जो मैंने 1 डेढ़ साल ओपन माइक्स में जा के किए हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 ऐसे गैदर ढूंढ कर करके, हाँ समझ गैदर गया। करके जो किए। हाँ, सो दैट इज हाउ वो शो बना है। बस सुपर तो यार सुपर। ऐसे हो नहीं नहीं, गया यार। बट आई वांटेड टू से भाई कि द रीजन आई पिक्ड अप द क्वेश्चन फॉर स्टैंड अप, बिकॉज क्या है कि सी आई हैव डन इम्प्रोव फॉर 2 years, मेरा इम्प्रोव Yeah, का I know बैकग्राउंड you've है। done. हाँ नहीं नहीं, बट आई वांटेड That's टू also से, very difficult, na? Improv is not something easy. नहीं नहीं, आई एग्री, बट हाँ, स्टैंड अप ना भाई क्या होता है, लाइक सी, ऑफ कोर्स दे बोथ आर इन द सेम बोट, हाँ, इम्प्रोव एंड स्टैंड अप। बट स्टैंड अप में क्या है, यू आर लिटरली द ओनली पर्सन ऑन स्टेज, लिटरली इट्स कॉल्ड स्टैंड अप, यू नो व्हाट आई मीन, एंड हाँ, ऑल आईज आर ऑन यू। लाइक इम्प्रोव में क्या होता है, व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, तो यू नीड पीपल, उसमें क्या है, यस एंड इम्प्रोव में, सो उसमें क्या है, यू नीड एटलीस्ट वन पार्टनर, तो क्या है 50-50 हो जाता है बोझ। इसमें क्या है, ऑल आइज आर ऑन यू, everyone is depending on you to make them laugh, तो इतना प्रेशर होता है एंड इट्स नॉट इजी जो आप करते हो। एंड आपने जैसे अभी कहा कि इट्स बीन सच अ बिग हिट, टचवुड, यू नो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ। किसी को गुस्सा दिलाना है, गाली दे दो गुस्सा हो जाएगा, बट किसी को हंसाना है, माय गॉड, बिकॉज लाफ्टर इज सब्जेक्टिव, एंगर इज वेरी कॉमन, लाफ्टर इज वेरी सब्जेक्टिव, व्हाट माइट बी फनी फॉर यू माइट नॉट बी फनी फॉर मी, तो exactly. वो करना इज रियली, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लाइक मैंने तो कभी नहीं सोचा स्टैंड अप करना, बिकॉज इट्स नॉट इन माय बैंडविड्थ, इट्स नॉट लाइक आई कांट डू इट, इट्स लाइक मुझे समझ ही नहीं आएगा मुझे क्या करना है। इम्प्रोव आई गेट इट, आई एम विथ माय को एक्टर ऑन स्टेज कि कहीं ना कहीं ही विल टेक केयर ऑफ मी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, बट स्टैंड अप तो भाई इट्स अ डिफरेंट लीग। सो सुपर्ब यार, सुपर्ब, वेरी नहीं, नाइस, थैंक वेरी यू सो नाइस। मच यार। देखो मैं एक नहीं नहीं, चीज बताऊं, मुझे स्टैंड अप करते हुए एक और चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित किया स्टैंड अप की तरफ, और जिस वजह से मैंने स्टैंड अप कंटिन्यू किया है। हमें हमें ना हमेशा पैसे इस चीज के लिए मिलते हैं मीमो, कि हम आर्य बब्बर ना हो, हम नीमो चक्रवर्ती ना हो, एंड फलाना कैरेक्टर बन जाओ। एग्जैक्टली, बी अक्षय, बी राज, बी मोहम्मद, बी फलाना, बी यू नो आकाशदीप, बी एनीवन, करेक्ट, मिलिट्री का ऑफिसर है, ये है, वो है, गुंडा है, व्हाटएवर है, समथिंग है, आतंक, जो भी कैरेक्टर्स है। स्टैंड अप स्टैंड अप जो है उसने मुझे यार 20 साल बाद मेरी जिंदगी में मुझे एक मौका दिया कि मुझे स्टैंड अप ने कहा, बी आर्य बब्बर ऑन बी स्टेज, योरसेल्फ, यस, बी योरसेल्फ। आई हैड फॉरगॉटन हु आई वाज यार। होता है, करेक्ट, आई हैड रियली, क्योंकि मतलब मैं, ठीक है, मैं फिल्मों के वक्त तो चलो, या एक्टिंग के वक्त तो यार आई वाज बीइंग जो भी कैरेक्टर मुझे दिया जा रहा था। जब मैं परिवार के साथ हूँ तो मैं उनका बड़ा बेटा बनकर हूँ, वो भी एक कैरेक्टर है। जब मैं बीवी के साथ हूँ तो मेरा एक कैरेक्टर है कि यार मुझे अच्छा पति बन के रहना है, या मुझे बुरा पति बन के रहना है। या मैं दोस्तों के साथ हूँ तो यार मुझे ऐसा बन के रहना है। यू नो सही है। मुझे मैं जब स्टैंड अप कर रहा हूँ, मैं अकेला स्टेज पे खड़ा हूँ, एवरीथिंग मैं हूँ। सिर्फ यू आर बीइंग योरसेल्फ, आप यस, अपनी कहानियां बता रहे हो, यू नो व्हाट आई मीन। एंड आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। मुझे मुझे मैं बता रहा हूँ नीमो, उसने मुझे खुशी, इतनी ज्यादा खुशी दी उसने। मनी एवरीथिंग अच्छा, सेकेंडरी है उसका। उसकी खुशी जो थी ना यार, एंड इट मेड मी मीट माई सेल्फ। इट मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं एक बेहतर एक्टर भी बन पाया, क्योंकि एब्सोल्युटली मुझे भाई, मुझे याद आया मैं कौन हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टुडेज वर्ल्ड ना वी टेंड टू फॉरगेट Yes. हु वी आर, वो तो है। और अगर वंडरफुल, आप वंडरफुल। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप भी बहुत अच्छा स्टैंड अप कर सकते हो। अगर अरे आपका कब आप थैंक मैं यू, सच में बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, आप कमिंग आप फ्रॉम यू, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। वेरी नहीं नहीं, नहीं नहीं, बट यस यू आर राइट भाई कि देयर सो मेनी लेयर्स टू इट ना। हमें क्या लगता है कि यार बस ये आदमी ने जोक्स रेडी किए, इसके इंसिडेंसेस लिख दिया और अब हम लोग को हंसा रहे हैं, बट देयर सो मेनी लेयर्स टू व्हाट वी डू इन लाइफ, दैट्स द पॉइंट यस, ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड कि एंड एग्जैक्ट, सॉरी सॉरी, आप हाँ, क्या नहीं नहीं, बोल रहे प्लीज 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 भाई कंटिन्यू, हाँ। वही चीज पे जो आपने बोला उसी पर मैं एक बात बताता हूँ। जैसे एक जो बम्बई में अलग तरीके से कहा जाएगा, वही सेम जो गुड़गांव में अलग तरीका से कहा जाएगा, वही सेम जो जयपुर में अलग तरीके से कहा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही एंड सही सही। वो चीज आपको समझने को मिलती है। बहुत मजेदार चीज है।
ये there's like बोलते ना, there's so much of self exploration going on in the laughter, in the comedy. वो तो होता है ना. एंड वही स्टैंड अप में भी क्या होता है, आई डोंट नो वेदर इट्स दैट काइंड ऑफ स्टैंड अप, बट यूजुअली हम अपनी ट्रेजेडीज को फनी बनाते हैं. हाँ भाई, सो यू नो दैट इज रियली एन अमेजिंग थिंग के हाउ मच यू नो द ट्रेजेडी ऑफ अ पर्सन becomes a comedy for like so many thousands and millions of people. But that's what या comedy is, है ना? या एग्जैक्टली. जैसे मैं तुझे मेरा एक जोक बताता हूँ. हाँ, इट्स अ जोक कि जी मेरी पहली फिल्म थी. मेरी पहली फिल्म का नाम था जी अब के बरस. मेरा बॉलीवुड डेब्यू हुआ था एक फिल्म से जिसका नाम था करेक्ट अब के करेक्ट बरस. करेक्ट. एंड दो दो जन्म हुए थे मेरे उस फिल्म में सर. दो दो जन्म. एक भी जन्म फिल्म को बचा नहीं पाया. नहीं नहीं, but I get it. But see, यू गेट that's इट. I get it. Trust me, आई I नो यू know. गेट इट. I have done Jimmy. I know. नहीं नहीं, but that's the thing, ना. See बट now how जिमी बट जिमी वाज क्वाइट एन एस. जिमी सेव्ड अंकल. जिमी डिडंट सेव यू. हैं? very true, very true. नॉट गुड. जिमी को किसी दिन जिमी मिला तो हम दोनों उसको देंगे. अरे क्यों बे? speaking of movies, you know, now तो you have become very sportive about it. Speaking of movie, जैसे आपने कहा ना आपके बरस, you know, आपका ऐसा था. So that shows that you know what kind of a sportsmanship you have. Usually लोग क्या होते हैं, अरे यार मैं तो नहीं बोलूंगा, नहीं सब अच्छा था. कभी कभी होता है ना, people get embarrassed by their failures. You need to rejoice your failures. And Yes. speaking of even success, क्या हुआ था? This is after Haunted, okay? After the movie released, it became a hit. So I was shooting for another film. तो एक कोई आया, एक फैन बोला, अरे आप तो वो हॉन्टेड वाले, आप ना बहुत हॉरिबल थे उसमें, इतना डर लगा ना मुझे, बहुत हॉरिबल थे आप. आई एम लाइक, डिड ही इंसल्ट मी? ही एक्चुअली मेंट टू से दैट इट वाज सो स्कैरी, कि आई मेरी वाज फट सो गई. स्कैर्ड. हाँ हाँ. क्या, बट आप बहुत हॉरिबल थे. ही मेंट टू से दैट आप बहुत अच्छे थे बिकॉज हॉरर थी. सो ही मिक्स्ड हॉरिबल विद हॉरर. That's बाद so में जाके sweet, यार. रियलाइज. हाँ, That's so sweet. आई एम लाइक, यू नो, लेट इट गो यार. मुझे उस वक्त लगा क्या भाई इतना मैं बुरा था. इट वाजंट दैट एट ऑल. सो या, मैंने सच में आई एग्री विद. मैंने समझा है लोग जो होते हैं ना वो कभी कभी जब मिलते हैं हमसे वो वो खुश इतने हो जाते हैं. भाई आई एम टेलिंग यू, ये हाँ. एग्जैक्टली मैं चीज बोलता हूँ ना. सी माई वाइफ, ओके, शी इज अनुपमा, करेक्ट. तो आई हैव सीन कि पीपल उसको जब देखते हैं वो एक सेकंड के लिए दे नम. आप समझ गए? हाँ. अभी क्या होगा ना, फॉर मी आई एम अ वेरी बिग जॉन सीना फैन. अभी लाइव में मैं अपनी वाइफ को ही बोलता हूँ कि द मोमेंट द डे, ऑफ कोर्स आई विल मीट हिम वन डे, व्हेन आई मीट हिम, मेरे फोटोज में मैं बस रो ही रहा हूँ. I can't believe कि ये हो रहा है कि I'm standing next to John Cena. You know what I mean? That feeling that I'm going to go talk to him. जब when you're standing in front of your idol, you become numb. ये वही होता है. I'll tell you, I was the exact same way when I met Mithun sir. अरे, thank you. I am a Thank you. huge fan of Mithun sir. Bimo, huge fan of his films like Guru, of his films like Commando, of his films like Disco Dancer, कसम पैदा करने वाले की. I am like that man made. And what a good actor. What a good, great actor. Okay? Who understood कि साला घंटा ये हो रहा है. मुझे जो है मैं I'm gonna hit the nail hard when it's really needed. And he hit it hard. बोला तुम लोगों को ये चाहिए ना साला मैं यही दूंगा तुम लोगों को. तुम लोग ये यही लो साला. तो नहीं, and true, people भाई, true. embraced him to. I remember meeting sir on Guru's set, you know, and मैं इतना एक्साइटेड था सर को मिलने को कि मैं बाहर गया उनको मिलने. एंड ही वाज इनसाइड, यू नो. और जब उनको पता चला कि मैं आया हूँ एंड ऑब्वियसली पापा और उनकी दोस्ती अलग लेवल पर है, Of course, you of know. course. एंड उनको पता चला मैं आया हूँ, उन्होंने इतने प्यार से मुझे मिले. पर मैं ऐसे ही था. आई एम टेलिंग यू, आज भी जब मैं मिथुन सर से मिलता हूँ और मेरा सीन भी जो मिथुन सर के साथ है फिल्म में, देयर इज ओनली वन सीन दैट आई हैव विद मिथुन सर वेर ही टेल्स, मैं उनको प्रसाद देता हूँ और बोलते कौन है ये गवार. एंड मैं मेरा एक्सप्रेशन वही है जो मैं मिथुन सर के लिए था. हमने कहा हाँ? और उस शॉट में हंसी आती क्योंकि ऐसा लगता है ये सच में गवार है. क्योंकि आई वॉज फीलिंग लाइक दैट ओनली. मैं No, इस no. आदमी मैं क्या बोलूं, उसने मुझसे बात कर ली. I understand that मैं feeling. ऐसे था, अरे मिथुन सर स्पोक टू मी, मैं भूल गया क्या कैरेक्टर था, शूटिंग चल रही है. सच में तू वो शॉट निकाल के देख, ऐसे ही वैसे दिख रहा है.
नहीं देखूंगा देख I'll revisit that of course. अरे तू वो शॉट देख, it is no acting in that shot. Oh no, I get it. I get it. It's crazy, crazy, boy. No, but हाँ bhai, यार, I wanted to ask you now. Of course, you know what you said is true. You know, when fans meet their, they spot somebody. I'm like, अरे my God, this is that guy or this is that woman. So of course, उनके brains में थोड़ा वो malfunction हो ही जाता है कि आपको process नहीं कर पाता है कि what do I say. So they fumble up. You know, हाँ। we are human after all. You know, to err is human. So that is great. But speaking of, कितना हैंडसम लग रहा है ये आज, तुम लोगों ने देखा है? ये आज कितना हैंडसम लग रहा है। thank you, भाई. मतलब बहुत मतलब क्या आप इसने अपने मुंह पे लाइटिंग मारी है और ये क्या करके भेजा, ऐसा चमक रहा है ये लौंडा आज। थैंक यू नहीं नहीं एक्चुअली क्या हुआ अब मैं बच गया हूँ वो मेरे दो हरामे आते ना दोस्त उन लोग इतनी मेरी मारते हैं ना इतनी लेते हैं मेरी मतलब आपको पता नहीं हम मैं दोनों कितना खुश साथ हुआ में आज लेते हैं उनकी। दैट डज नॉट साउंड राइट इन एनी एट वर्ड ऑल बट वी विल एट ऑल। कंटिन्यू सेइंग दैट फॉरएवर यस, वो बच गए। बच गए वरना एंड हम उनकी मारते उनकी लेते वाह, यू नो थैंक यू दैट इज द यस, क्लिप इट वुड हैव व्हिच बिकम आई अ विल ले देन पोस्ट शिप। वी आर पोस्टिंग दिस पर्टिकुलर क्लिप ऑन सोशल मीडिया मारने और यस, लेने की ले देन शिप। हाँ, Crazy. No, but bhai, I also wanted to ask you. Of course, I would want you to, come back for more episodes in the podcast. But today, since we are focusing a little bit more upon stand-up, because kya hai, dekho, people have seen your filmography. You are doing so many great films. Yes, you're doing a daily soap on Z. So wo bhi hai. So the reason I'm focusing on stand-up is because it's very rare then that an actor has this range. Now, what my next question is that see, films has a different approach to acting. Daily soap has a different approach to acting. Stand up is a completely different medium, even though you're not acting, but you're performing in a way. Because if you are like flat, yeah, I went and then the Kela fell on me and then my, bum got cracked. Nobody's going to laugh at it. You know what I mean? So, how do you manage that spectrum? Because that is something which has always intrigued me. And one more thing I want to ask you, ladies and gentlemen, you need to know that Arya Bhai Babbar Sher, my big brother, he has also done many short films also, by the way, and they are available to see. तो भाई उसके बारे में भी थोड़ा आप थोड़ा delve in करो because you have written and directed them also. So talk about that and also about the spectrum that how do you manage this because simultaneously you're doing everything. जैसे आपने कहा था at the start of the episode, you're doing Punjabi films, you're doing daily soap, you're doing stand up. How do you regulate the actor in you? वो बताइए. wow. Um, Majorly, I think what your question is, how do you regulate from, from acting for camera and then being on stage, performing on Exactly. stage? Exactly. That's your major thing. Yes. Yes. I think क्योंकि मैं बहुत सारे ओपन माइक्स पे गया, मैंने ऐसा नहीं किया कि चलो आज मेरी एक रील चल गई है, तो चलो अब मैं अगले हफ्ते से शो करूंगा. I did not do that. I gave myself that time to understand that art. एंड बिकॉज मैं इतने सालों से सिनेमा कर रहा था या मैं थिएटर कर रहा था, सो एक स्टेज की समझ, एक माइक की समझ, एक स्टेज का स्टेचर समझना, कैसे खड़ा होना है, कैसे ऑडियंस से कनेक्ट करना है, वो चीज़ों की समझ पहले से थी. तो वो एजुकेशन की वजह से क्या था मेरे पास, जो मुझे दूसरे स्टैंड अप कॉमिक्स ने भी बताया कि बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन ऑफ वर्क जो इतने साल किया था, अब मैं ऐसा लग रहा था जब दूसरे कॉमिक्स मुझे देखते थे, उनको महसूस होता था कि ऐसा नहीं है कि यू आर अ फ्रेशी इन स्टैंड अप, यू ऑलरेडी हैव अ नॉलेज सिंस 4-5 years. जैसे मुझे ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि enacting is not creating a character and enacting and suddenly becoming a different character and becoming you is not stand up comedy. Okay. But there is no definition of stand up. Oh. Okay. Okay. Stand up comedy is exactly doing it the way you want to do it. Okay? So मैं जो कहा जा रहा था कि ये नहीं है, ये नहीं, मैंने उसको मेरा स्ट्रेंथ बनाया कि मेरा ये मेरी यूनिकनेस है. मैं अपना अगर एक किस्सा कहानी बता रहा हूँ तो उसमें मैं आर्य बब्बर भी बन सकता हूँ, उसमें मैं अनीस बाज़मी भी बन सकता हूँ, उसमें मैं सलमान खान भी बन सकता हूँ, उसमें मैं दोबारा आर्य बब्बर बन सकता हूँ, मैं परेश रावल जी भी बन सकता हूँ, एंड आई कैन कम बैक टू बीइंग आर्य बब्बर एंड आई कैन डू ऑल ऑफ दैट, यू नो.
if I'm talking about my father and me and a qissa of what happened with us, I can be my father also in it and I can be myself also in it. Correct. You know, because I have that education of acting to it. Makes sense. Makes You know, sense. so Yeah. I understood कि ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस नहीं है. जो बहुत लोग मुझे समझा रहे थे और कह रहे थे कि अरे ये तेरा माइनस है, ये तेरा माइनस है. और ये हर इंडस्ट्री में होता है. जब आप पढ़ रहे होते हैं, हर इंडस्ट्री के कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत पुश करते हैं. इस इंडस्ट्री में भी थे काफी लोग मेरी वाह कर रहे थे, मुझे पुश कर रहे थे, मुझे एनकरेज कर रहे थे. और कुछ लोग हर जगह हर इंडस्ट्री में चलते हैं. वो होता You है know, भाई. हाँ. and it's a good thing. वो जलेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा that you're doing well. You know, Very true. Very true. it's important. You Very know, true. Very true. Yeah. you know, जब तक कोई बुरा बोलेगा नहीं, इसका मतलब तुम्हें घंटा कुछ अच्छा ही नहीं है. बुरा बोलने वाले लोग चाहिए यार, सही है. सही है. अच्छे वो बोलने से ज्यादा. कड़वा सच. हाँ. हाँ, सही. वो कहीं ना कहीं बोल ही देते हैं. अपने भड़ास में भी उन लोग सच बोल देते हैं. देन यू लाइक हाँ. अरे यार ही इज राइट इन अ वे. मे बी शी इज मेकिंग अ पॉइंट. या सही. घंटा is making a point. Making no point. Take the bloody point and point it in your whatever. Point पॉइंटेड का इन योर pointless. पिछवाड़ा. हाँ, ऐसा. point के pointless pointers. हाँ, वाह, क्या tongue twister. Point के pointless pointers. हाँ, That's we need to trademark that, like Arya Babbar said that. Yeah. yes. आंखों में Yes. आंसू आ गए मेरे. Thank you. हाँ, Thank you. हाँ. मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ को बाहर नहीं निकले. बाप रे. इसमें इसमें ही परफॉर्मेंस निकल आएगी भाई. पॉडकास्ट से बाहर निकल आएगी. मैं सच में बता रहा हूँ. लोग बोलेंगे ये पहली बार 3D पॉडकास्ट था. वाह, क्या है ये? बाप दो रे. नेपो बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी है. बाप इसके अंदर रे. देखना नीचे कितने गंदे कमेंट्स आएंगे. अरे बाप रे. जो गालियां मिलेगी हम दोनों को तो पता हाँ. है. बी रेडी. हाँ, I too was so ready. I was also ready. वाह. दैट इज सो इंसाइटफुल भाई. I know. इतना नॉलेज ना आपके पास है. बाप. मैं बताऊं, बहुत नॉलेज है मेरे पास. बहुत नॉलेज है. दैट वाह, इज. बहुत नॉलेज है. No, no, इसलिए but तो मैं स्कूल में पढ़ता नहीं था. नहीं बहुत नहीं. नॉलेज थी मेरे पास. अरे वाह. क्या बहुत क्या नॉलेज. मतलब आज इतने चीजें आपके बारे में मैं जान रहा हूँ. बहुत हाँ, अच्छी बात है. थैंक बहुत यू वेरी अच्छी मच. बात. थैंक यू वेरी मच. No, but yes, you're right on that. Ke definitely your education in acting and your training in acting and your work in acting definitely played a very big part for you in हाँ यार. stand up. हाँ. And but I wanted to say that the reason I called you on this podcast is because ये podcast का क्या intention है? I'll tell you. Like in a very quick summarized way. Okay, the Three Desi Amigos podcast is about putting this information out there for future people, like for generations and for people out there who want to do something. Like last week, a couple of weeks ago, sorry, one of my very close friends had come. He's a cricket commentator. तो वो हमने क्रिकेट के बारे में बात कर रहा था. तो there were so many things he spoke about cricket, which is not just to do with batting and bowling and fielding and everything. It's about so many other layers in which people can be associated with cricket. So that is the objective of the podcast. Here we can help people out there. So I wanted to ask you, let's say I'm a new guy, okay, and I just realized I want to do stand up as a career. What advice can you give to the younglings out there who want to pursue stand up as a career? Please say that. I very strongly say कि अगर आपको स्टैंड अप करना है और आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पहले 6 महीने आप सिर्फ ओपन माइक्स पे जाइए. और इट डज नॉट मैटर कि आप बॉम्ब करें. बॉम्ब का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा करें. बॉम्ब का मतलब स्टैंड अप में ये होता है कि आपने बुरा किया है. पूरा किया. Exactly. ठीक है, इट डज नॉट मैटर. एंड जस्ट बिकॉज एक आपका 5 मिनट का या 5-6 मिनट का या 10 मिनट का एक परफॉर्मेंस अच्छा चला जाए, दैट डज नॉट मीन कि वही जोक्स कहीं और अच्छे जाएंगे. डज नॉट मीन दैट. पहले 4-5 महीने अपने दोस्त और ग्रुप्स को मत बुलाइए. वो आपको गलत गाइड करेंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपकी चीजों पर वैसे भी हंसेंगे क्योंकि वो आपके दोस्त हैं या वो आपकी फैमिली है. Correct. पहले अपने जोक्स डेवलप करिए. जोक्स डेवलप करने से ज्यादा पहले अपने आप को ढूंढिए. क्योंकि देखिए, जब हम यार दोस्तों या परिवार के साथ बैठे होते हैं ना, उनके साथ जब हम जोक्स करते हैं तो वो जोक्स जो है वो क्लिक इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान हमारे हमारे नेचर से वाकिफ है और हम भी उस इंसान के नेचर से वाकिफ हैं. टू सिट इन अ रूम जहां पर आप किसी को नहीं जानते पर उसको आप जानकर इतना कंफर्टेबल बना लें इन 5 मिनट्स. इन 5 मिनट्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ 50 मिनट शो. आई एम टॉकिंग अबाउट अ 5 मिनट शो.
करेक्ट। इन 5 मिनट्स आपने उस इंसान के साथ कनेक्ट किया, बातचीत की, उसको कंफर्टेबल किया, इस हद तक कंफर्टेबल कर दिया कि आप उसको रोस्ट भी कर सकते हैं, आप उससे बातें भी कर सकते हैं और आप उसको दोबारा कंफर्टेबल कर सकते हैं। टेक योर टाइम एंड डू इट। और सबसे ज़रूरी चीज़, किसी का सुझाव ना लें। ओके, ओके, हाँ, प्लीज़ किसी का सुझाव ना लें। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, मैंने अभी आपको सुझाव ही दिया है। वेरी डीप बट या ओके, It's important to explore who you are first. एंड मैंने अपने सामने कुछ कॉमिक्स को देखा है जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था और मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या कर रहा है, यू नो। पर आज जब मैं ओपन माइक्स में उनको देखता हूँ, लाइक वाह क्या कर रहा है यार। वंडरफुल, वंडरफुल, यस, मैं सेम लाइन बोल रहा हूँ लेकिन मेरा एक्सप्रेशन ऑफ सेइंग बुरा हो गया, अलग हो गया। मैं आज उनको देखता हूँ, मेरी फट जाती है उनको देखकर, लिटरली फट जाती है कि मुझे तो भाई। और साला जब शुरू हुआ था इतना बकवास था यार। हाँ, यू इम्प्रूव ना भाई इन टाइम, करेक्ट, yeah, करेक्ट, and you only improve because you're doing open mics. And करेक्ट, even and ये भी सच है कि अगर आप स्टेज पे जाना बंद कर देंगे, आपका फ्लो खत्म होगा, रस्ट आ जाएगा, स्टेज रस्ट, स्टेज रस्ट आ जाएगा, आप एक ही लहजे में घूमेंगे। इम्पोर्टेंट है कि आप करते रहें, करते रहें, करते रहें। वंडरफुल, वंडरफुल, ओह, Now बिकॉज़ that is something नहीं, नहीं, I यू आर would वेरी ट्रू। like to communicate to people. नहीं, नहीं, अच्छी बात है भाई, थैंक यू बिकॉज़ सी कमिंग फ्रॉम यू बिकॉज़ यू आर डूइंग इट एंड यू डूइंग सो वेल। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि जो भी ये पॉडकास्ट देखे, उनको भी वो मोटिवेशन मिले बिकॉज़ क्या होता है नाउ इवन दिस पॉडकास्ट राइट नाउ सी वी आर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, फॉरगेट द वर्ल्ड, आप अपने सामने एक कैमरा डाल दो, सबकी फट जाती है बिकॉज़ क्या होता है यू बिकम कॉन्शियस ना बिकॉज़ अ कैमरा इज़ अ लेंस टू द वर्ल्ड और हम लोग को क्या एज़ ह्यूमन बीइंग्स वी आर सो स्कैर्ड ऑफ बीइंग जज्ड। अरे यार! ये कितना गंदा लग रहा है, अरे इसने डायलॉग डिलीवरी खराब दी, सो एंड सो फलाना फलाना। ऑफ कोर्स एक्टर्स वी हैव लाइक यू नो सोल्स ऑफ स्टील बिकॉज़ हमें इतनी गालियाँ पड़ती है, नाउ वी आर इम्यून टू दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बट द पॉइंट इज़ जो आप कह रहे हो कि you need to first keep failing to understand what is your niche। अगर आपने आर्य बब्बर का जोक मारा बट आर्य बब्बर का जोक आर्य बब्बर कैन ओनली डू इट वेल, मीमो विल हैव टू लैंड अ डिफरेंट जोक व्हिच इज मीमोस एग्जैक्टली थिंग। exactly. जैसे मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तेरी ही बात पर जो तूने अभी बोली। हम्म, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, मीमो ने अभी एक चीज अभी बोली कि एज एन एक्टर हम वी हैव सोल्स, स्टील, यही कहा था ना आपने, यही टर्म करेक्ट, यूज किया। सोल्स ऑफ स्टील, हाँ, इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैंड अप एज अ कॉमिक आपके साथ वो हो। देखिए, करेक्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी और पर जोक करें, सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए कि आप पर जोक होगा और आप चिल मारेंगे। वेरी जैसे ट्रू, मैं जिस रूम में जाता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी करने, ओपन माइक्स करने, आज भी जब मैं जाता हूँ, सबसे पहले जो कॉमिक स्टेज पे जाता है वो सिर्फ मेरे पे जोक मारता है। अच्छा मतलब आप अगर उस विसिनिटी में हो, मतलब आपका जब नंबर आएगा उसके पहले तो उनको हाँ, पता है कि आप उधर हो, वो आप कह रहे हाँ, हो। ओह, ओके, 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 सिर्फ मेरे पे जोक्स मारे जाएंगे, ठीक है। एंड ऑडियंस एंजॉय करती है, ऑडियंस हंसती है, एंड आई हैव टू बी ओके विद इट। और मेरा पहला जोक होता है जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, मेरा पहला जोक होता है, आज मैं इतना खुश हूँ, मैं आया हूँ, ये फलाना कॉमिक, ये सारे कॉमिक्स यहाँ हैं, एज एट लास्ट इनके जोक्स पे कोई हंसा है, आई एम हैप्पी टू ऐड समथिंग टू देयर लाइफ। नाइस, गुड वन भाई, हाँ, गुड एंड स्ले, वो गुड कॉमिक, स्ले, या हाँ, एंड वो कॉमिक्स भी हंसेंगे। दिस इज अ गिव एंड टेक इन कॉमेडी। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, कोई आप पर कोई वेंडेटा नहीं निकाल रहा। सही है, कोई यू आपको कांट बी, डायरेक्टली इंसल्ट नहीं हाँ, कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट बी सेंसिटिव इन कॉमेडी प्लीज। एक तो लोग ना आजकल बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, पूरी एक जनरेशन बन गई है जो सेंसिटिव है। सोचो वो भी कॉमेडी में। कॉमेडी में सेंसिटिविटी, सीरियसली। डजंट जैसे वर्क। जिससे मैं एक नया शो लिख रहा हूँ, उसमें एक लाइन है जो मैंने लिखी, जो मैंने एक्चुअली कही थी, ओके, एंड माय वाइफ इज फ्रीक्ड आउट अबाउट दैट लाइन, दैट यू कांट से दिस लाइन, इट इज सो रॉन्ग। मैंने कहा बट इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज अ रियल लाइन। उसमें एक लाइन है जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि ऐश्वर्या के भाई के रोल की कास्टिंग हो रही है। हाँ? तो मैंने कहा यार मुझे कास्ट कर ले, मैं ऑडिशन दे देता। पता नहीं नहीं, हम लोग यहाँ साउथ से ही किसी को कास्ट करेंगे। मैंने कहा साउथ का आदमी कैसे ऐश्वर्या का भाई लगेगा? हाँ? गोरा चिट्टा होना चाहिए ना उसका भाई। फॉर मी इट्स अ वेरी फनी नाइट बिकॉज आई सेड इट, द गाय हू हर्ड ही डाइड लाफिंग बिकॉज ही वाज टॉकिंग टू मी ऑन द फोन।
My wife finds this line extremely wrong. very, very racist, but yeah, it's comedy. Yeah. It's comedy. मैंने एक बार एक जोक कर दिया था, you know, सबको पे कर दिया था। हाँ, अरे Hmm. वाह! कि जब भी मुझे कोई छक्के दिखते हैं, मैं सोचता हूँ इनको पैसे दे दूँ, क्यों? नहीं तो छक्के छूट जाएंगे, नहीं तो आज छक्के छूट जाएंगे। Now this sounds very wrong. You know, it is something I can get cancelled over, perhaps whatever, but it's a funny line. मैंने एक बार एक पायलट को देखकर बोल दिया था, क्योंकि वो हमारे पीछे आ रहा था, ठीक है? और मुझे तेज-तेज अंदर प्लेन में दौड़ाया जा रहा था। तो मैंने बोला, "अरे यार! इतना तेज क्यों? सर फ्लाइट फ्लाइट।" ठीक है, मैं भाग रहा हूँ अंदर। मैंने सडनली देखा पायलट पीछे है। हुँ, नाउ इट्स लाइक रनिंग इनसाइड वानखेड़े स्टेडियम और रोहित शर्मा आपके पीछे है। Correct. घंटा फिर क्या बैटिंग कैसे शुरू होगी? ये तो रोहित खुद आया ना अभी। तो मैंने सही है, उसको सही। देखकर बोला, "अरे ये तो अभी खुद आया है, यही उड़ाएगा क्या प्लेन? तू क्या इतना टेंशन ले रहा है अभी? हाँ? हैं?" तो लोग सही है, हँसने सही। लग गए। वो चिढ़ गया। समझ गया। वही आपने जैसे कहा ना, कॉमेडी इज वेरी सब्जेक्टिव। वही तो बात है ना। जैसे लाइक हाउ योर वाइफ सेड कि दैट इज कैंसल कल्चर स्टेटमेंट राइट देयर, बट फॉर द अदर गाय ही वाज लाफिंग हिज बट ऑफ कि भाई ऐसा जोक नहीं सुना है। यू नो, दैट्स व्हाट कॉमेडी लेकिन इज। कभी-कभी you know audience also gets used to your humor. There is a joke of mine in crowd work I had done and it landed superbly. मैं उसकी रील भी बनाऊंगा कुछ दिनों में। प्लीज प्लीज, हाँ। रिसेंट टाइम्स में था, बहुत अच्छा जोक था। I was asking about turbulence. My joke जो एक्चुअली मेरा चुटकुला था, it was about turbulence. I was trying to connect the audience and be like, turbulence आप लोगों को कभी महसूस हुआ, आप turbulence से डरते हैं? ऑडियंस went quiet because उनको लगा कि सारा कॉमिक है, रोस्ट करेगा। हाँ? तो मैं चुप हो गया and I was like let's imagine this is the bike. Thank you. I just perhaps needed a sip. आई नो। And I'm like, ओके। हाँ, sir, I was like, this is what I am on stage. Huh? Now आई deal नो। with it. हाँ, Now you understood. ऑफ Okay. कोर्स। So I'm standing over there and I'm like, turbulence कोई बोल नहीं रहा है। मैंने बोला क्या हो गया? किसी को turbulence से डर नहीं लगता? और कोई नहीं लगता। मैंने कहा एक सेकंड रिलैक्स हो जाओ साहब। प्लीज ऐसा मत समझो कि मैं उस टाइप का कॉमिक हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएंगे पैसा खर्च करके मतलब हालत आउट करके बारिश में ट्रैफिक में आप आएंगे मेरे शो में एक नए कॉमिक को सपोर्ट करेंगे पैसे पैसे खर्च करके बैठेंगे शो को देखने और अब मैं आपकी लूँ मैं आपकी नहीं लूंगा मैं आपकी गर्लफ्रेंड की ले लूंगा आपकी नहीं लूंगा लॉर्ड, डियर लॉर्ड। ओके। ऑडियंस फटी है इस जोक पर ठीक है बट इफ यू से दिस जोक विदाउट अ बिल्ड अप टू देम नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग यू they will not accept this joke because it's a very wrong joke ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। and जो पति है और जो बॉयफ्रेंड है वो हंस रहा है मतलब नहीं नहीं, वही है ना। आपने उनको कहीं ना कहीं तो कंफर्टेबल किया होगा सही। so I think it's important to understand your audience understand the room इस रूम में मैं क्या जोक्स मार सकता हूँ रीड द रूम। सही है। read the room करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं नहीं, माय गॉड, लाइक वही मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दैट, जैसे आपने कहा, लाइक व्हाट आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड, कि ऐसा नहीं कि बस हाँ, यू नो, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल एंड केम टम्बलिंग डाउन आफ्टर, ये जोक नहीं है। There's so many layers which go into the preparation, the failures, the observation, the room, the cities, the lingo, the people, what position you are in, हालात क्या है दुनिया के, इतने layers जाते हैं इसमें, which is a beautiful thing because it's art ना, in the end it's craft. And वही है जैसे आपने कहा अभी, like the jokes which you have said now, they land because it's comedy, because it's how the way you are saying it. अभी ये आप रास्ते में जाके बोलो सब मारेंगे आपको, like what the hell are you saying, bro? thank you You know Memo what I mean? नहीं thank आपको नहीं मारे। नहीं thank you Memo thank No, no, you no. this one second this show started मेरा बड़ा भाई I looking for inspiration this show is ending on आप रोड पे जाओ लोग मानेंगे आपको वाह वाह नहीं भाई, I love you ना, तो क्या क्या इसलिए करें? इसलिए मरवा रहा है मेरे को तू हैं? Imagine ना, this is Bhushan's line, I love you भाई, so I'm saying that to you now, I love you भाई। वाह आई No, लव no. यू भाई तो मेरी भी लाइन है हाँ नहीं, but my point is कि no, not you, but generally अगर कोई जाएगा तो उसको मार पड़ेगी कि यार आप ऐसे बात नहीं कर सकते, but that's the beauty of comedy, that हाँ even if you say something which is inappropriate, but अगर आपने सही तरीके से बोल दिया, it actually lands and it becomes freaking funny. या That's the art, that's the beauty. तो वो बात है। like I want to create a joke on handicapped people but I can't do it मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ and I'm trying to create a joke
but नहीं वो होता है वो। there is a guy, there is a comic, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं। नहीं जिमी कार। No, no, I'm not talking about जिमी एक हिंदुस्तान का कॉमिक है, नया ओके कॉमिक, लड़का है, वो महंगा है, ऐसा ओके है वो। और ओके उसका उसका स्टार्टिंग जोक है कि मैं मैं आंखों पे जोक नहीं मार सकता हूँ क्योंकि आंखों के मेन जोक जो है वो अंधे लोग रह गए। अब वो जोक वो क्रैक कर सकता है और आप हंसोगे क्योंकि वो ऐसे होकर बोल रहा है, मैं आंखों पे जोक नहीं मार सकता हूँ क्योंकि आंखों के मेन जोक तो है अंधे ले गए। अब आप हंसोगे ही हंसोगे क्योंकि उसकी सिचुएशन पे आप हंस रहे हो। वही ना मेरा ट्रेजेडी है ना, वही हाँ तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी हाँ मतलब ट्रेजेडी पे ऐसा आप हंस रहे हो। हाँ मतलब मैं जब लड़की के साथ डेट पर जाता हूँ उसको हमेशा लगता है मैं साइड वाली को ताड़ रहा हूँ। अब मतलब इस पे आप यू हैव टू लाफ, यू हैव टू लव बिकॉज but that दैट्स हिज boy has रियलिटी। used his weakness as his strength and I love that. I think वही that's तो है। something very well that you had also put some time back, and we've come back to that. Tragedy is comedy. Weakness is understanding your weakness and using it as your strength is As a stand-up strength. comedy. Like भाई, I if you remember this movie 8 Mile, जिसमें Eminem था. Oh, So what a film. So in the climax, right, he has to do that rap battle. No? तो the like Eminem का जो दोस्त है वो बोलता है कि this bad guy, the villain of the rap battle, he's going to rap about what kind of a loser you are and how your girlfriend left you for some big musician and all. तो Eminem को उसकी बत्ती ऑन होती है. So जब head and tails होते हैं तो बिकॉज द विलन इज रेडी कि मैं इसकी तो आई डिस्ट्रॉय हिम, बोलता है एमिनेम तू जा पहले, लाइक ही द विलन विंस द टॉस बट ही टेल्स एमिनेम टू रैप फर्स्ट। और एमिनेम क्या करता है, वो अपनी ट्रेजेडीज के बारे में पूरा रैप करता है कि भाई तू मुझे क्या हराएगा, मैं तो ऑलरेडी हार चुका हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है ये क्या बत्ते क्या। सो देन द रैप बैटल बिकम जीरो बिकॉज द विलन प्रिपेयर टू डिस्ट्रॉय हिम, एमिनेम डिस्ट्रॉयज हिम इन हिज ओन रैप। दैट्स द ब्यूटी एंड एवरीबॉडी चीयर्स कि यार क्या आदमी है यार, अपने फेलियर्स को सैल्यूट कर रहा है। You know what I mean? That's the reason I told this story. It's because if the moment you accept your failures as something as a funny thing, ना, जैसे अभी हम लोग ने, आपने आपके बरस की बात की, मैंने जिमी की बात की. They are part of our films. They are the thing. They are the reasons we started working. Of course, we both know what the results were of those films, but today we can laugh about it. I think Very world few also people knows can. what the results were. Exactly. Let's अरे आपको अब you won't believe it. For Filmfare, तो they didn't even nominate me as newcomer. So imagine. तो वो हालत थी जिमी की. So my point is that today we can laugh about this because of course we have grown This and we have was matured. superb what you said. Right, Pale. मतलब I तो Oh, broke every record. मतलब न्यूकमर के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट को भी मुझे डाला नहीं, मतलब ऐसी थी वो जी. तो you know what I'm trying to say, right? So my point is that take it as a sport, it's life, people will go through ups and downs, but make it into something funny because you'll end up laughing, and laughing is always good for health. You know what I mean? yes. That is what I want to summarize this. But before we end the episode, in a very quick summarized way, how, like you said about open mics, right, bhai? So then how can people find these open mics, because you said that's the very first step to do. तो वो थोड़ा बता दो आप प्लीज. देखिए हर शहर में ओपन माइक्स होते हैं, ओके ठीक है। आप बुक माई शो पर जाइए, ठीक है। अगर आपके शहर बुक माई शो पर यूजुअली लिस्टिंग्स होती हैं कहाँ ओपन माइक्स हो रहे हैं। ओपन माइक्स के लिए रजिस्टर करिए। अगर आप बम्बई जैसे शहर में हैं तो आप वोटेड वंस जो है कम्युनिटी है बॉम्बे में, उनके साथ ओके कनेक्ट करिए। हैबिटेट है एक कम्युनिटी जहाँ पर बहुत ओपन माइक्स होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करिए। कोशिश करिए कि आप रेगुलर हों। वीकेंड्स पे तो ये शोज होते ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मंडे या थर्सडे ओपन माइक्स करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करिए। एंड बम्बई में बहुत जगह हो रहा है, दिल्ली में भी काफ़ी जगह हो रहा है, गुड़गांव में भी काफ़ी जगह हो रहा है। चंडीगढ़ जैसे शहरों में कुछ एक दो पर्टिकुलर रूम्स हैं, वहाँ होता है, जैसे लाफ स्टोर में होता है, लाफ क्लब में होता है। कॉमेडी थिएटर इज़ इन दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ पर होता है। लाफ स्टोर है दिल्ली में, वहाँ पर होता है। बम्बई में काफ़ी रूम्स हैं जहाँ पर होता है। जयपुर में देयर आर सर्टेन रूम्स जहाँ होता है। So every city has it. Even cities like Dehradun has a lot of open mics happening. मैंने खुद ओ वहाँ वाह जाकर किया है, ओके you know. I wanted to do a show also in Dehradun, पर मैं कर नहीं पाया. It did not work out, you know. It was not working out economically for the people to plan it and do it. So वो नहीं हो पाया. But I'm telling you right now, the comedy culture is really growing in India. It's booming.
and आने वाले time पर it will boom more because I think people have started understanding that comedy में आप sensitive नहीं हो सकते. Yes, be sensitive about someone's faith, Correct, of course. because that is what Indian culture is. Absolutely. Indian culture is about our faith. Our faith is our religion. We have to be sensitive towards it. उसकी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. Absolutely. वो जैसे मेरा कोई भी जो है वो रिलीजन पे नहीं है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं है. But that Very is the good. path I have chosen. There are a Correct. lot of comics which do jokes on politics and politicians and the state of the country, and they're doing very well for themselves. Of course. I of don't do course. that. Correct. I don't do that because मैं उस चीज पर जोक करना चाहता हूँ जो मेरा एजुकेशन है. मेरा एजुकेशन ऑफ लाइफ इज सिनेमा. सही है. मैं एक फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा हुआ हूँ, मैं एक फिल्म फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, और मैं 20 साल से सिनेमा में काम कर रहा हूँ. तो मेरा हर जोक जो है वो कहीं ना कहीं सिनेमा से ही कनेक्टेड होगा. बी ट्रू टू योर जोक्स, बी ट्रू टू योर सेल्फ. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आप कौन हैं. जैसे आप समझेंगे आप कौन हैं, आपके जोक्स ऑटोमेटिकली वो बन जाएंगे. जैसे देयर इज अ वेरी गुड कॉमिक दैट इज कमिंग अप राइट नाउ, जो बिहार से हैं. उनके सारे जोक्स बिहार के ऊपर हैं, उनकी फैमिली के ऊपर हैं, और वो गुड़गांव में कैसे सरवाइव कर रहे हैं उसके ऊपर है. वो जोक्स मैं अरे नहीं वाह. कर सकता हूँ. करेक्ट You know? करेक्ट. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. जैसे कोई जोक्स है, एक कॉमिक है वो मुसलमान है. उनका जो मेन जोक होता है वो ये है कि जी मैं यहाँ पर हूँ, गुड़गांव में हूँ, मुसलमान हूँ, और हाँ मैं अभी तक जिंदा हूँ. अब ये उनके लिए बहुत बड़ा जोक है और लोग हंसते हैं. ये जोक मैं नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट. ये मेरे मेक पे लैंड सेंस. ही नहीं होगा. सही है. You know? सही. So Got it, got it. it's important to understand who you are in comedy and do the jokes accordingly. Very true. Very true. No, thank you, bhai. Thank you. I know that, if you and me are talking, we can talk for hours and hours. I think we but did. you spoke about stand up, you spoke about your journey, and you spoke about insights on stand up. So I really hope कि कोई ना कोई जब भी ये episode देखे, they get motivated to take the plunge into stand up. And कहीं ना कहीं, if we have helped them, I think we have achieved success in this episode. So thank you, Uh, bhai. Thank you so much for No, coming. thank you. To Thank the you so three much. Desi Amigos. I just want to take this a minute and just say thank you so much. And lots of love to Bhushan and Ashu also. Nashu, right? Nushazar, yeah. Sure. I would Huh. a lot of love to both of them. I do not know you guys that well, but I would have loved to connect with you, both of you today. And Mimo, I'm really, really glad कि हम दोनों मुझे ये मौका मिला कि मैं तेरे से बात कर पाया यार. इस Same here, तरीके bhai. से on your podcast. Thank you, I love जिस तरीके से आप कंफर्ट पैदा करते हो एंड समझ में आता है और दिखता है कि you're just not doing it. It really comes across that you put your heart and soul into it. I think that's what you do. I think you put your heart and soul into anything to everything that you do. Your passion comes across. And besides everything, looking at your beautiful, handsome face, makes me smile. You good-looking boys. Very Thank you, sir. good-looking boys from Thank you, Motherland. Oh my sir. My God. God. My God. Oh my God. Chalo, no, but This thank you, boy. bhai. Thank you. It means a And lot to me. love to everyone. Thank you so much. And अगर आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में तो कूद जाइए, चाहे वो स्टैंड अप हो, कुछ भी करना चाहें जाके करिए. जरूरी है कि आप काम करें. Just do it. Just do it. Just Yes. do it. Anyway, thank you, bhai. Thank you. And everyone, thank you for tuning in. So until the next episode, see you. Take care and, spread gratitude and love. All right. See you. Bye-bye. Bye-bye, sir. So John Abraham, there are two voices. What is speaking right now is this is how John Abraham also sounds. His sound like this. There is a very thin line when he says, this is this is how. But at the same time, there is a voice also like when John का लगे, something. This is how John sounds. ये भी John. This is John. ये भी John. And ये भी John. Okay. So it is like there are two variations.